Good afternoon, kids. Welcome to my channel. Is Math Hard? So, we will start with the topic fraction of class 7 ICSE board. Okay. So, first, what is fraction? Fraction, any numbers which is written in the form of a x upon y, where y is not equal to 0, then it is called as a fraction. Okay. Now, what are the types of a fraction? One first is unit fraction type. In this type of a fraction, the numerator is always 1. Okay, the numerator is always 1 and the denominator will be any positive integer. Okay, any positive integer will be a denominator. So 1 upon 2, 1 upon 7, 1 upon 28. So denominators are all positive, numerators are all 1. So these are called as the unit fraction unit. Now proper function. In proper function, numerator is smaller than the denominator. Okay, like 9 upon 20, 14 upon 79, 1 upon 2. So this is called as a proper fraction. Opposite of a proper fraction is improper fraction. An improper fraction, numerator is greater than denominator. Okay, or it is equal to the denominator, then also it is called as the improper fraction. Okay, this is improper fraction. What is mixed fraction? Mixed fraction will be having a whole number, the whole number like 1, and along with a fraction like whole number 1 and fraction 3 upon 4, whole number 5, a fraction 7 upon 9. Now what are like fractions? Like fractions means when denominators are same. When denominators are same, like 12 upon 17, 14 upon 17, 2 upon 17, then these three fractions are called as the like fractions. What are unlike fractions? When fraction will be having a different denominators, like in this fraction the denominator is 5, and in this fraction the denominator is 8. In this fraction the denominator is 3, so they are not equal, then these are known as a unlike fraction. Okay, now we will learn how to convert unlike fraction into a like fraction. Okay, into a like fraction. Suppose there are three fractions, 3 upon 5, 11 upon 15 and 21 upon 30. So in these are unlike fraction. This is unlike fraction. Why? Because the denominators are not same. So first what we will do is we will make the denominator same. How to make denominator same? We will identify the LCM of the denominator. The LCM of the denominator क्या रहेगा? 5, 15, 30. इसका मुझे LCM निकालना है, तो कैसे निकालूंगी मैं? है ना? You must have learnt in the previous class. 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 6 are 30. 3 1s are 3, 3 2s are 6. 2 1s are 2. 5 into 3 into 2 is 5 3s are 15, 15 into 2 is 30. So this will be my LCM. LCM will be 5 into 3 into 2, that is 30. So LCM will be 30. Okay. Now 3 upon 5. To make denominator 30, what we will do is we will multiply 5 by 6. क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो 6 3 is 18 एंड 5 6 is 30. मुझे फ्रैक्शन को चेंज नहीं करना है, इक्वली बना, जैसे इक्वलेंट ही रखना है इसे. ठीक है, तो 18 अपॉन 30. फिर 11 अपॉन 15. 15 को मुझे 30 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगी, है ना? तो मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 15 2 is 30, 11 2s are 22. Okay, so now this is 22 upon 30.
देन 21/30, तो 30 तो मेरा ऑलरेडी 30 ही है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज़ 21/30। तो अब मेरा अनलाइक फ्रैक्शन था 3/5, 11/15 और 21/30। तो अब मेरा लाइक फ्रैक्शन क्या हो गया, 18/30, 22/30, 21/30। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन था मेरा, तो मैंने उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर एक कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है, अभी मान लो ये मेरा, देखो ये मान लो ये एक मेरा एक होल पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर मैं इफ़ आई विल डिवाइड दिस बाई 2 एंड आई विल कंसिडर दिस पोर्शन, ओके, तो मैं क्या बोलूँगी, अगर ये मान लो ये हाफ पिज़्ज़ा मैं किसी को दे देती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास 2 पीसेस थे, 1 और 2, और मैंने कितना पीस दे दिया उसको, 1 पीस दे दिया, 1/2। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, 1/2। लेकिन सेम चीज़ को मैंने क्या किया है, 4 पीसेस में डिवाइड किया है, ओके, और उतना ही जितना मैंने इसमें दिया था उतना ही यहाँ पे दे दिया है ना। तो मैंने क्या किया, 2 पीसेस दिए, टोटल पीसेस कितने हैं, 1 2 3 4, और उसमें से मैंने सिर्फ 2 ही पीसेस दिए हैं, तो 2/4। ठीक है, अभी सेम चीज़ को मैंने क्या किया, 6 पीसेस में कर दिया। ठीक है, अभी ये इतना ही पोर्शन दे रही हूँ, टोटल कितने पीसेस है, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से मैंने कितने दिया है, 3 दिया है, ओके। अब मैं क्या करूँगी, इसी चीज़ को 8 पीसेस में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, प्लीज़ डोंट, हाँ 8 पीसेस में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें से मैंने कितने पीसेस दिए हैं, 4 पीसेस दिए। तो अगर देखा जाए तो मैंने सेम ही अमाउंट ऑफ पिज़्ज़ा सामने वाले को दिया है, लेकिन इसमें मैं क्या कह रही हूँ, 1/2, यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, 2/4, इसमें मैं क्या कह रही हूँ, 3/6, इसमें मैं क्या कह रही हूँ, 4/8। तो दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ द शेडेड पोर्शन इज़ द सेम। तो हम कितना उसका डिवीजन कर रहे हैं और उसमें से कितना पोर्शन दे रहे हैं, है ना। अगर हम सेम ही अमाउंट दे रहे हैं तो देन व्हाट वी विल से इज दिस ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ वन मोर कंसेप्ट इज अबाउट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। नाउ सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन में क्या होगा, बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर्स आर होल नंबर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड एज द सिंपल फ्रैक्शन। वहीं पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस क्या हुआ, वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे आर नॉट होल नंबर एंड बट अगेन हमारा डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। लाइक अब हमारा न्यूमरेटर है 1/5, मतलब फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, और डिनोमिनेटर मेरा 9 है। ठीक है, ये तो होल नंबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। या मेरा न्यूमरेटर तो होल नंबर है लेकिन डिनोमिनेटर मेरा फ्रैक्शन है 3/4, ये भी हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। या तो मेरा न्यूमरेटर फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर जो है 15.2 है, डेसिमल नंबर है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। तो किसी भी कीमत में अगर मेरा डिनोमिनेटर जो है 0 तो होना ही नहीं चाहिए। अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 है मतलब कि दैट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो फ्रैक्शन में मेरा डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता, ओके। ओके, थैंक यू किड्स, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो। If you want any improvement, you want any topic to be understood in mathematics, please let me know. I will try my best. Thank you.